Hello, my dear student. Myself, Dr. Monica Patel. Today, we're gonna learn regarding the cardiogenic shock. In previous lectures, we learned regarding the hypovolemic shock and traumatic shock. Now, today's topic is cardiogenic shock. So, name itself suggests the meaning of cardiogenic shock. Cardio means related to the heart. So, shock occurred because of any disease condition or injury or any problem into the heart known as the cardiogenic shock, right? In this step of the shock, there is no any loss of fluid or no any loss of blood, but heart itself not able to pump normally, and because of that decrease the cardiac output, and there is the hypoperfusion of the cell. क्या होगा? Hypoperfusion of cell. So let's learn together regarding the cardiogenic shock with Dr. Monica Patel. That means with me. Now, cardiogenic shock definition, etiology, pathophysiology, clinical features, and management. These all the points we will try to cover in this lecture. So start with the definition. Cardiogenic shock is a state of inadequate tissue perfusion due to cardiac dysfunction despite of adequate और increase intravascular volume. तो कार्डियोजेनिक शॉक एक स्टेट है कि जिसमें हाइपोपरफ्यूजन होगा सेल का बिकॉज ऑफ कार्डियक डिसफंक्शन, बट यहाँ पे एडेक्वाइट अमाउंट में इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम होगा, यहाँ पे वॉल्यूम लॉस नहीं हो रहा है, राइट? Now, cardiogenic shock is a medical emergency in which heart fails to pump enough amount of blood to meet the body's nutritional need, leading to critical tissue hypoperfusion. Now, इसकी पैथोफिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करने से पहले हम नॉर्मल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे. विद द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द राइट एट्रियम. From the right atrium goes into the right ventricle. From the right ventricle, with the help of pulmonary artery, it goes inside the lung where the oxygenation is taken place. Now, this oxygenated blood, red color माने कि oxygenated blood. This oxygenated blood with the help of pulmonary vein now enter into the left side. This is the left side of the heart. Now into the left atrium, then it goes into the left ventricle. And from the left ventricle with the help of aorta, this distribute into the various organ of our body. This is the normal cycle, right? चलो, अब etiological factors of the cardiogenic shock. First, acute myocardial infarction. Second, extensive myocardial ischemia. Third, myocarditis, inflammation of various layers. Fourth is the cardiomyopathy related to muscle. Fifth one is the severe heart failure. Sixth one is cardiac tamponade. That means fluid accumulate into the pericardium cavity which compresses the heart. Then after massive pulmonary embolism, that means blood clot into the pulmonary circulation. Then after tension pneumothorax. Then after valvular disease of the heart. Then after any sort of injury to the heart and post-surgical complications. So these all are the etiological factor for cardiogenic shock. These all factors are responsible for impaired cardiac pumping. That means decrease the cardiac output and ultimately hypoperfusion of the cell. आपको यही साइकिल मैं बार बार बोल रही हूँ, each and every lecture of shock में आपको बता रही हूँ कि आपको नॉर्मल साइकिल ही याद रखनी है. पैथोफिजियोलॉजी आप जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे. नाउ पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू impaired myocardial contractibility, whether it is because of MI, because of heart failure, heart cannot pump the sufficient amount of blood. That means decrease the cardiac output,
Reduced cardiac output, that means decrease the blood pressure, that means decrease the perfusion to the vital organ, leads to organ dysfunction and failure. See, हमारी बॉडी में इंट्रावास्कुलर अमाउंट नॉर्मल है, ब्लड भी नॉर्मल है, राइट? तब भी हमको शॉक देखने को मिल रहा है बिकॉज हमारी जो मोटर है और वी कैन से जो नॉर्मल हार्ट का पंप वाला मैकेनिज्म पार्ट है वो ही अल्टर्ड हो गया, इम्पेयर्ड हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज द डिक्रीज इनटू द अमाउंट ऑफ पंपिंग ब्लड, अथवा तो और वी कैन से कार्डियक आउटपुट जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है और उसकी बिकॉज ऑफ दैट हमको हाइपोपरफ्यूजन देखने को मिलेगा। नाउ हम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। So left ventricular failure, for example, 4 part of heart, 4 compartment में से ये है right atrium, this one is the right ventricle, left atrium and left ventricle. So this one is the left ventricle. अभी left ventricle fail हुआ, that means left ventricle में से blood अभी pump नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होता जाएगा, देन इसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब आप थोड़ा लॉजिक लगा के सोचेंगे तो क्या होगा, जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जमा होना शुरू होएगा, इकट्ठा होना शुरू होएगा, तो अभी वो बैक प्रेशर कहाँ पे डालेगा, लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि ये तो सारा भर गया, थ्रेशोल्ड लिमिट आ गई, तो अब बैक प्रेशर कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में से बैक प्रेशर कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता था, विद दी पल्मोनरी वेन, लंग्स में से ब्लड यहाँ पे आता था, तो अगेन दिस पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी बैकफ्लो जाएगा और अल्टीमेटली हमको पल्मोनरी इडिमा देखने को मिलेगा, and because of pulmonary edema, that is the inside the lung, and which may affect the normal respiratory mechanism, leads to dyspnea, that means breathing difficulty, hypoxia and crackles on auscultation. अगर आप लंग में ऑस्कल्टेट करेंगे तो आपको क्रैकल साउंड देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द पल्मोनरी इडिमा, राइट? सो लेफ्ट वेंट्रिकल में से प्रेशर बैक होता हुआ गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में से सी दिस इमेज से हम स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा ब्लड भर गया, तो ब्लड कहाँ पे जाएगा, एट्रियम में, चलो एट्रियम भी पूरा भर गया, तो यहाँ से ब्लड जो है बैक फ्लो कहाँ पे जाएगा, हार्ट में, और हार्ट में जाके वो डिस्निया, हाइपोक्सिया और क्रैकल्स जैसे सिम्टम्स डेवलप करेगा, राइट? सो right heart failure, second part is the right heart failure because of the massive pulmonary embolism. अभी क्या होगा, see again, this is the right atrium, this is the right ventricle, यहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल से ब्लड फाइनली कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, लंग्स में जाता है और फाइनली पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में वापस आता है। अभी ब्लॉक अप टू 50% ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ रास्ते में ही कहीं पे एम्बोलिज्म है, तो राइट वेंट्रिकल में से ब्लड अभी जो है वो नॉर्मल अमाउंट में लंग्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, दैट मीन्स यहाँ का जो आउटलेट होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे ब्लड जमा होना शुरू होगा, दैट मीन्स बैक प्रेशर टू, अभी राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आता है, राइट एट्रियम में से आता है, राइट एट्रियम में कहाँ से आता था, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से, तो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा में भी अभी हमको बैक प्रेशर देखने को मिलेगा। अगेन दिस इमेज की मदद से हम स्टडी करेंगे, देखिए कि सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड कहाँ पे आया, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल, एंड देन वो कहाँ पे जाता है, लंग्स में। अभी यहीं कहीं एम्बोलिज्म माने कि 50% ब्लॉक हो गया, तो वेंट्रिकल में से ब्लड नॉर्मली लंग तक नहीं जा पाएगा, क्यों, रास्ते में तो ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, एम्बोलिज्म आ गया, तो अभी ब्लड यहाँ पे जमा होना शुरू होएगा, तो जब भी वेंट्रिकल भर जाएगा तो बैक प्रेशर कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में, अभी एट्रियम में भी फुल ब्लड भर गया, तो अभी बैक प्रेशर जो है वो कहाँ पे जाएगा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है वो ब्लड कहाँ से लाती है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी,
inferior vena cava the lower part of the body, right? So उसके अकॉर्डिंग हमको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बैक प्रेशर टू सुपीरियर inferior vena cava leads to neck vein dilatation. क्यों नेक वेन डायलेटेशन? बिकॉज सुपीरियर वेना केवा जो है वो नेक वाले एरिया, हेड एंड नेक में से ब्लड लंग्स में लाता था, एंड inferior वेना केवा जो है वो लोअर बॉडी माने कि पोर्टल सिस्टम और लोअर लिम्स में से ब्लड हार्ट तक पहुंचाता है. तो हमको लीवर एनलार्जमेंट भी देखने को मिलेगा. आपको ये सारा बैक साइकिल में स्टडी करना है, और अगर आपको नॉर्मल साइकिल याद है तो आप बैक फ्लो जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट? नाउ द क्लिनिकल फीचर, फर्स्ट इज द हाइपोटेंशन, राइट? देन टेकिकार्डिया, sorry, second one is the tachycardia, increase the heart rate. Third one is the cold clammy skin because of the vasoconstriction. Then fourth one is the oliguria, that means decrease the urine flow, or anuria, that means absent the urine flow. Then altered mental status ड्यू टू पुअर सेरेब्रल परफ्यूजन. अभी ब्रेन भी तो हमारा एक ऑर्गन है, ब्रेन को भी नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? अल्टर दी मेंटल स्टेटस. देन पल्मोनरी इडिमा. पल्मोनरी इडिमा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी बैक प्रेशर. ये लेफ्ट साइड में अगर प्रॉब्लम आती है तो बैक प्रेशर होता है और डिस्नी और क्रैकल्स मिलते हैं. चलो, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन. आप सोचो किस टाइप ऑफ द हार्ट अफेक्शन में देखने को मिलेगा? राइट साइड. हमने बोला ना अभी, राइट साइड में पल्मोनरी एम्बोलिज्म की मदद से, और बिकॉज ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म राइट साइड में अफेक्शन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट बैक प्रेशर हमको नेक वेन में, दैट मीन्स जुगुलर वेनस डिस्टेंशन देखने को मिलेगा. लिवर डिस्टेंशन देखने को मिलेगा भी हमको राइट साइड ऑफ द हार्ट में. नाउ इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? ECG कराएंगे because of the MI to rule out the MI in arrhythmia. Then after cardiac enzyme, troponin I or CKMB. This type of the cardiac enzyme is the indicator for any type of disease, or we can say the infarction inside the heart. Then echo करवाएंगे to rule out the amount of cardiac output, whether any valve involved or not, or any pathology inside the valve, right? Now chest X-ray करवाएंगे to pulmonary edema, rule out the pulmonary edema. Then blood test, for example CBC, renal test, and liver enzyme. Now management. Generally this type of the patient, जनरली हमको कहाँ पे आईसीयू में एडमिट करने पड़ेंगे. ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होना चाहिए. आईवी थेरेपी स्टार्ट करने की जरूरत है तो वो करनी चाहिए. साथ में मॉनिटरिंग, दैट मीन्स उसका बीपी, उसका पल्स और उसका यूरिन आउटपुट भी हमको मॉनिटर करना पड़ेगा. मेडिकेशंस हम क्या क्या कर सकते हैं? आइनोट्रोपिक ड्रग, फॉर एग्जांपल डोब्यूटामाइन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन. देन वाजोप्रेशर, दैट मीन्स वाजो कंस्ट्रिक्टर मेडिसिन हमको चालू करनी पड़ेगी. देन डायूरेटिक्स. डायूरेटिक्स माने कि दिस टाइप ऑफ द ड्रग हेल्प टू reduce the fluid amount in our body. तो if the pulmonary edema is present, that means lungs में जो है fluid इकट्ठा हुआ है, तो डायूरेटिक्स क्या करेगा? यूरिन आउटपुट इंक्रीज करवाएगा. तो यहाँ पे जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, पल्मोनरी इडिमा हुआ है, वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा. देन रिवास्कुलराइजेशन बाय द परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, अगर जो MI है तो. एंड लास्ट वन इज द मैकेनिकल सपोर्ट. जो हार्ट नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो बाहर से हमको मैकेनिकल सपोर्ट देना पड़ेगा, और उसमें हम बलून थेरापी माने स्टेंट और बलून थेरापी भी कर सकते हैं, और एनी वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, फॉर एग्जांपल पेसमेकर भी हमको लगाना पड़ सकता है. So this is all regarding the cardiogenic shock. Into the cardiogenic shock, first is the definition where the heart involved. Etiological factors में आपको हार्ट के डिसीजेस लिखने हैं. पैथोफिजियोलॉजी में हम बेसिकली टू टाइप ऑफ द राइट एंड लेफ्ट साइड अफेक्शन होगा तो बैक प्रेशर जाके लंग में, लंग वाले सिम्टम्स याद रखने हैं. डिस्निया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, राइट? अगर राइट साइड में अफेक्शन हुआ, दैट मीन्स बैक प्रेशर सुपीरियर वेना केवा के थ्रू नेक वेन में जाएगा, एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू
लीवर के अंदर जाएगा। दैट मीन्स लीवर एनलार्जमेंट, नेक वेन डायलिटेशन जैसे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। देन इन्वेस्टिगेशंस में आप क्या क्या करवा सकते हो, एंड देन मैनेजमेंट में फर्स्ट इज द जनरल मैनेजमेंट, सेकेंड इज द मेडिकेशन, थर्ड वन इज द सर्जिकल इंटरवेंशन, fourth one is again mechanical support. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel, Dr. Monica Patel. Thank you so much.